talk about oral health and hygiene. So here with us today we have Dr. Deepa Sadnani. She is a practicing dentist in Jaipur, India. She has done her BDS from one of the most prestigious colleges in Jaipur, which is Jaipur Dental College, in 2007. Since then, she is a regular practicing at her clinic, which is situated in the walled city of Jaipur, Chandpur Bazaar. She has been certified in advanced endodontics, full mouth rehabilitation cases, and implantation, and aesthetic dentistry as well. So, first of all, welcome, Dr. Deepa. So, let's hear from you, since you're a dentist. What is oral health, and what is oral health hygiene, and what all is included in it? Hello, everyone. First of all, thank you so much. Thank you for having me here and for a brief introduction. That's so nice of you. And so today we are here for the oral health and maintenance, and we'll talk today only about the oral health. Okay. First of all, what is oral health? Oral health is the health refers to the health of gums and teeth and entire orofacial system. Entire orofacial system that includes a problem related to the TMJ, temporomandibular joint. This is joint that is like mandible and the temporal bone. They both are connected and make it a temporomandibular joint. So any problems related to TMJ, oral cancers, there are certain problems that is systemic diseases also that will be visible in the mouth as a oral lesions. So we call them as an oral manifestation of systemic diseases. So these are the things which are included in the oral health. इसके अलावा the things like there are some birth defects, cleft lip and cleft palate, any jaw fractures and fractures related to the facial bone. These are all included in the oral health. Okay. So how does one know that his or her oral health is getting compromised? Oral health is compromised जब भी आपको अगर ऐसा लगे something if you have a hot and cold sensitivity, pain in the biting or any jaw deviation, any clinking in the jaw, bleeding gums, any changes in the enamel or tooth surfaces, any abnormal bite pattern, if you have a cross bite or if you have a proclination, if you have a retrograde bite. So these are the procedures that comes in the patient came to know that its oral health is getting compromised and it should be right time to visit a dentist, nearby dentist. Okay, so can you tell us how to maintain this oral health on a daily basis? I get up in the morning, and what is the first thing that I do to keep my hygiene, my oral hygiene? Yeah, to maintenance of the oral hygiene, the first and most important thing is the brushing technique. Brushing twice in a day is very important with good quality of the toothbrush and paste as suggested by a dentist. Nowadays, I'll suggest for the fluoride toothpaste. If you have a fluoride in your toothpaste, it's very important for the enamel strengthening. इसके अलावा the dietary habits, they are very important. The diet rich in calcium, vitamin D, that make the enamel strong. It's very important. Green leafy vegetables, vitamin C, that all are very important for maintenance of the good oral hygiene. Interdental cleaning aids are very important. जिसमें dental floss and interdental cleaning aids आते हैं. Dental floss are there most readily or easily available in any market or supermarket or chemist shop. क्योंकि हम कुछ भी खाते हैं वो टूथ सरफेस से तो ठीक आपने कितनी भी अच्छे से ब्रशिंग कर ली पर इंटरडेंटल एरिया में वो डिपॉजिट्स होते ही हैं तो वहां से नॉर्मल ब्रश क्लीनिंग नहीं हो पाती प्रॉपर्ली तो ऐसे केसेस में डेंटल फ्लॉस इट्स वेरी हेल्पफुल दैट्स द मेन थिंग जो एज अ डाइटरी हैबिट्स एंड प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक these are the main things should be taken care of and the first and the most important things regular visit to the Okay, so what all patients visit you with what all oral health problems? Oral health problems, patients generally visit us with a pain. Mainly जो patients आते हैं वो generally dental pain को लेके आते हैं. If someone has extra oral swelling, जो बहुत ही problems बढ़ाकर आते हैं. Bleeding gums, it's very commonest procedure. And आजकल जो patients आते हैं mainly जो अभी awareness बढ़ रही है तो definitely वो early stages में अपनी cavities को भी fill करवाने आ जाते हैं. इसके अलावा आजकल कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री का भी है तो if someone has a malaligned teeth, crooked teeth,
ओवरलैपिंग है, मिडलाइन डायस्टेमा है, स्पेसिंग है दांतों में, तो दैट कैन बी करेक्टेड बाय द कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री. इसके अलावा इफ एनी डिस्कलरेशन इन द टीथ स्टेन्स हैं, इफ समवन हैज अ हैबिट ऑफ द टोबैको च्यूइंग एंड लाइक स्मोकिंग वगैरह ये सब का है, तो दैट दीज उनके लिए भी पेशेंट्स आते हैं, वेरी कॉमनली पेशेंट्स आते हैं फॉर स्केलिंग एंड द वाइटनिंग प्रोसीजर्स. तो ये और इसके अलावा द पेशेंट इफ समवन हैज अ मिसिंग टूथ लाइक, तो दे कैन बी रिप्लेस्ड बाय द इम्प्लांट एंड ब्रिज वर्क. तो मिसिंग टूथ की कंप्लेंट्स भी बहुत जनरली आती है. So these are the main procedure that we carry out our clinic. Yeah. So you spoke about discoloration of the teeth, right? So I think most people, jitno ko main janti hu, they have this problem of discoloration. So how do you know what color is apt for the teeth or what? क्योंकि कुछ के काफी yellow होते हैं, कुछ के थोड़े mid of white होते हैं, कुछ के बहुत white होते हैं. So what is the coloration? I mean, what is the apt color for a tooth? एक्चुअली जो टूथ का जो मेन नेचुरल कलर होता है वो जैसे लाइक क्यूफी स्किन हैज अ नेचुरल कलर, नेचुरल जो टैनिंग होती है, नेचुरल कलर होता है आपकी स्किन. समवन हैज अ फेयर स्किन, समवन हैज अ लिटिल लाइटर, लिटिल डार्कर. तो ऐसे टीथ का नेचुरल कलर होता है. कुछ खाने से, नॉट इवन टबैको स्टेन्स, हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी कंज्यूम करते हैं इन डाइट ऑल्सो, लाइक खाना भी खाते हैं, तो कुछ सबके स्टेन्स वो दांतों पे आते ही आते हैं. अब प्रॉपर ब्रशिंग मेंटेन करते हैं तो डेफिनेटली वो इतने डिपॉजिट्स नहीं होते अगर आपकी ओरल हाइजीन अच्छी है खुद की. और इसके अलावा इफ समवन हैज अ हैबिट लाइक टोबैको च्यूइंग और लॉन्ग टर्म से खा रहे हैं, तो वो जो स्टेन्स होते हैं वो दांतों की इनर लेयर में भी डिपॉजिट हो जाते हैं. So the stains are like, there are two types of stain, extrinsic stains और intrinsic stains. जो extrinsic stains होते हैं वो easily scaling से and bleaching से चले जा सकते हैं, ठीक है, scaling and polishing से चले जाते हैं. इसके अलावा इंट्रिंसिक स्टेन्स होते हैं जो बहुत 10 to 15 ईयर से टोबैको च्यूइंग कर रहे हैं या पान गुटखा ये सब खाते हैं, तो वो जो स्टेन्स होते हैं उनके लिए वो टीथ्स के डीपर लेयर में डिपॉजिट्स होते हैं. तो उसको रिमूव करने के लिए हमको कुछ और एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं. इसके लिए या तो विनेयर्स हैं दैट ऑल कम इनटू द कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री, वो सब चीजें करनी पड़ती है, तभी वो इंट्रिंसिक स्टेन्स रिमूव हो सकते हैं. या So do patients come and ask really weird questions about oral health कि ये मेरा दांत ऐसा है, इसका कुछ कर सकते हैं, or anything about oral health? So what are those weird questions जो आपको सुनने को मिलते हैं on daily basis? Actually, it's I can't say it's a weird question, but हाँ कुछ myths हैं डेंटिस्ट्री को लेके बहुत ज्यादा. जैसे कि कईयों को लगता है, कई पेशेंट्स आके बोलते हैं कि आपने स्केलिंग के बाद हमारे दांत ढीले हो जाएंगे एंड अपर टूथ को एक्सट्रैक्ट कर दिया तो हमारे इट्स रिलेटेड टू आईज, तो आंख कमजोर हो जाएगी. तो ऐसी चीजें, ऐसा मतलब पेशेंट्स के रिएक्शंस होते हैं टीथ्स को लेके, एंड तो वो सब चीजों को उसमें यही है कि बस डेंटिस्ट ही है जो पेशेंट की मिथ्स को क्लियर कर सकता है. तो उसमें ऐसा कुछ स्केलिंग करने से कभी भी दांत ढीले नहीं होते हैं. इनफैक्ट आपकी ओरल हाइजीन इंप्रूव होती है. स्केलिंग मतलब क्लीनिंग, क्योंकि प्रोफेशनली क्लीनिंग हर किसी को जरूरत पड़ती है. आप कितनी भी ब्रशिंग प्रॉपरली कर ले या प्रॉपर क्लीनिंग मेंटेन कर ले, जैसे कि मैंने बताया कि ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए सबसे ज्यादा ब्रशिंग टेक्निक बहुत जरूरी है. इसके अलावा डाइट का मैंने आपको बताया. वन थिंग आई मिस्ड ऑन दैट टाइम, इंटरडेंटल क्लीनिंग नीड्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें वी विल सजेस्ट यू फॉर डेंटल फ्लॉस एंड इंटरडेंटल टूथब्रशेस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो कैविटीज होती है वो जो इंटरडेंटल एरिया में डेवलप होती है, मतलब दो दांतों के बीच की कैविटीज. तो जो इंटरडेंटल एरिया है वो प्रॉपर्ली क्लीन नहीं हो पाता है, क्योंकि फ्लॉसिंग करने की किसी की हैबिट नहीं है, इंटरडेंटल टूथब्रश भी कोई यूज नहीं करता. तो इसलिए ऐसे एरियाज में जो हिडन एरियाज होते हैं वहां पे कैविटीज डेवलप होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. इसलिए डेंटल प्रोफेशनल क्लीनिंग बहुत जरूरी होती है. तो उससे एटलीस्ट आपके दांत मजबूत होते हैं, ना कि कमजोर होते हैं, ना कि ढीले पड़ते हैं. दांत जब ढीले पड़ते हैं स्केलिंग के बाद वो उन प्रोसीजर्स में होता है जहां पे ऑलरेडी इतना ज्यादा बोन लॉस हो चुका है और सिर्फ कैलकुलस की 1 mm 2 mm की लेयर्स डिपॉजिट होती है इंटरडेंट, और वो इंटरडेंटल ही कैलकुलस जो होता है वही कारण होता है मोबिलिटी का और एग्रेसिव जो गम्स ब्लीडिंग और टूथ लॉस का एंड मोबिलिटी का. तो दिस द मेन थिंग्स जो जिन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए. तो डेफिनेटली इन प्रोफेशनल क्लीनिंग बहुत जरूरी होती है सबकी. क्या तो जैसे हम किसी डेंटिस्ट को विजिट करते हैं, सो द फर्स्ट थिंग वी सी इज देयर इज अ सेटअप डेंटिस्ट का, ठीक है, कि जिसपे हम जाके लेटते हैं एंड द डेंटिस्ट पुल्स ऑफ द लाइट फ्रॉम द टॉप एंड चेक्स
the oral hygiene. So what are those basic equipments that a dentist needs to, treat the patient? Okay. See, dentistry is all totally based on the equipments and dental materials. We can't do anything. मतलब we are helpless. हम लोगों के हाथ ही हैं, मतलब ये हमारे हाथ ही हैं जो equipments और मटेरियल्स वगैरह. इसके अलावा वी पीपल आर हेल्पलेस. तो बेसिक जो चीजें होती हैं फॉर ए डेंटल क्लिनिक, डेफिनेटली एक डेंटल चेयर होता है. डेंटल चेयर पे जो पूरा सेटअप होता है उसमें वी हैव जो बेसिक सेटअप आई एम टॉकिंग अबाउट. तो बेसिक सेटअप में डेंटल चेयर एंड एक्सरे मशीन होती है, डेंटल स्केलर होता है. अब इनके अलावा जो मॉडिफाइड चीजें हैं, जो एडवांस चीजें हैं, ये तो बेसिक होना ही चाहिए किसी भी क्लिनिक में. उसमें आजकल एडवांस्ड एक्सरेज आ गए हैं जिसमें हम आरबीजी एक्सरेज यूज करते हैं. सेंसर बेस्ड एक्सरेज होते हैं, उनकी क्लैरिटी और विजन बहुत अच्छा होता है. एंड उसमें इसके अलावा 3D इमेजेस भी होते हैं, सीबीसीटी वगैरह भी होते हैं जो एडवांस डायग्नोस्टिक्स में आते हैं. डेंटिस्ट्री में सी इट्स नॉट लाइक अबाउट क्लीनिंग एंड ऑल एंड कैविटी फिल करना. जैसे एंडो पार्ट होता है, जो रूट कैनाल सिस्टम होता है, उसके इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल्स अलग होते हैं. उसमें भी यूज द एडवांस्ड रोटरी सिस्टम्स, ऑब्चुरेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, वो सब अलग आता है. इसके अलावा इफ वी गो टू द इम्प्लांट सिस्टम, तो इम्प्लांट सिस्टम के इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट सब अलग होते हैं. फिलिंग इंस्ट्रूमेंट्स वो अलग आते हैं. सर्जिकल पार्ट, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो अलग आते हैं. इसके अलावा आजकल मैग्निफिकेशन इंट्रोड्यूस हुआ है इन एडवांस्ड डेंटिस्ट्री. इसमें वी आर यूजिंग द लूप्स लाइक 3x लूप्स, 2.5x लूप अकॉर्डिंग टू योर कंपैटिबिलिटी. उसके अलावा द एडवांस टेक्निक्स माइक्रोस्कोप डेंटिस्ट्री इज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड, जिसमें रूट कैनाल्स वगैरह सब माइक्रोस्कोप में होते हैं. तो दिस इज ऑल प्रिसीजन बेस्ड डेंटिस्ट्री. काफी प्रिसाइसली सब बारीकी से क्लीनिंग एंड शेपिंग की जाती है रूट्स की. तो these all are things comes in the advanced dentistry. Okay, Yeah. so I've heard about a term that is an orthodontist. So now what is the difference between a dentist and an orthodontist? Because मैं हमेशा confused होती हूँ between the two aspects of dentistry maybe, or the two professions. So what is an orthodontist? What's the difference between the two? See, orthodontist is basically ऐसा नहीं है कि डेंटिस्ट ऑर्थो केसेस नहीं कर सकता है. इट्स नॉट लाइक कि आजकल तो बहुत सारे सर्टिफाइड और डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं. आफ्टर दैट यू कैन डू दिस प्रोसीजर इजीली. आप अपनी क्लिनिक पे कर सकते हैं. हाँ, डेफिनेटली जो देयर मेनी स्पेशलिटीज है डेंटिस्ट्री में. तो वन ऑफ द स्पेशलिटी इज ऑर्थोडोंटिस्ट. तो इन ऑर्थोडोंटिस्ट्री इज स्पेशलाइज्ड फॉर करेक्शन ऑफ द माल अलाइनमेंट और टेढ़े मेढ़े जो दांत जिन्हें हम बोलते हैं, या एबनॉर्मल बाइट पैटर्न्स हैं, सपोज इफ देयर इज अ क्रॉस बाइट वगैरह. और इसके अलावा एबनॉर्मल फेशियल ग्रोथ है, उसमें डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स आता है. उसमें ये सब चीजें हैं वो अर्ली टाइम पे, अर्ली एज पे, सपोज समवन हैज अ प्रोट्रूडेड चिन और प्रोट्रूडेड चिन और प्रोक्लाइन टीथ. तो दीज आर ऑल प्रोसीजर्स that is corrected by the orthodontist. But it's not necessary कि डेंटिस्ट नहीं कर सकता, जनरल डेंटिस्ट नहीं कर सकता. It's on his or her interest कि उसको ऑर्थो में कितना इंटरेस्ट है. बट हाँ, जो ऑर्थोडोंटिस्ट होते हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं इन्हीं चीजों की. तो दे कैरी आउट ऑल बाइट पैटर्न्स, एबनॉर्मल बाइट पैटर्न्स, स्मॉल अलाइनमेंट एंड एबनॉर्मल फेशियल ग्रोथ. So these are the things included in the ortho part. Okay, so coming back to procedures and everything, what is the most common procedures people come for to a dentist? See, generally in India, जो मैं मेरी प्रैक्टिस में देखती हूँ, तो पीपल तभी विजिट करते हैं जब उनकी बहुत एक्सट्रीम कंडीशन होती है. बहुत सीवियर डेंटल पेन लेके आते हैं, बहुत ही सीवियर कंडीशन में आते हैं, वो तभी डेंटिस्ट के पास आते हैं. तो जनरल प्रोसीजर जो हमको 70% जो मैं केसेस करती हूँ इन माय क्लिनिक, दैट इज रूट कैनाल ट्रीटमेंट. The root canal treatment is the only procedures to save the natural tooth. इसमें नेचुरल टूथ की रूट को क्लीन करके, उसमें जो भी बैक्टीरिया इन्फ्लेम पल्प होता है उसको रिमूव करके, प्रॉपर उसको क्लीन एंड शेप करके, उसमें फिर फिलिंग करी जाती है. दैट इज अ प्लास्टिक फिलिंग दैट विल एक्ट एज आर्टिफिशियल पल्प. उसको आर्टिफिशियल नर्व उसको प्रोड्यूस करके, उसको फिल करके एंड उसको सील किया जाता है दोनों तरफ से, कोरोनली एंड रूट एंड से. एंड उसके बाद ऊपर उसमें क्राउन या रेस्टोरेशन कर दिया जाता है ताकि उसमें वो री इन्फेक्शन दोबारा ना हो. तो दैट इज द रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जो यूजुअली जनरली 70 to 80% केसेस जो मैं अपनी क्लिनिक में फॉलो करती हूँ.
हाँ, अब धीरे धीरे अब लोगों में अवेयरनेस बहुत बढ़ रही है, तो डेफिनेटली अब वो कैविटीज लेकर भी आते हैं, ब्लीडिंग गम्स भी लेकर आते हैं। कॉस्मेटिक का थोड़ा अभी अवेयरनेस कम है, वो जनरली लाइक मेट्रोपॉलिटन सिटीज या बड़े सिटीज में या अच्छे एरियाज में, वहां पे ज्यादातर कॉस्मेटिक पेशेंट्स लेके आते हैं जिनको जो थोड़े इनसिक्योर है अपनी स्माइल को लेके, लाइक उनको एनहेंस करानी है अपनी स्माइल, वाइटनिंग प्रोसीजर्स करवानी है, या कुछ क्रुकुड टीथ है या कुछ माल अलाइन टीथ या स्पेसिंग है, वो सब चीज करेक्ट कराने हैं। तो ये प्रोसीजर फिर कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में डिपेंड्स ऑन एरिया टू एरिया, कौन सी एरिया में प्रैक्टिस कर रही है, लाइक तो उसमें रहता है। तो मोस्टली जो केसेस जो मेरी क्लिनिक पे आते हैं दैट इज रूट कैनाल ट्रीटमेंट एंड द प्रॉब्लम ऑफ द मिसिंग टूथ रिप्लेस करवाना है, एंड द ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स एंड द ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द गम्स। ओके, सो आपने जैसे अभी बोला दैट मिसिंग टूथ का काफी प्रॉब्लम आता है, राइट? सो डेफिनेटली फिलिंग्स आर यूज्ड टू फिल दैट gap, if I'm not wrong, right? So what are the different types of fillings that is used by dentists to fill those gaps? Because I've heard कुछ platinum के दांत लगवाते हैं जब नहीं होते, कुछ gold के दांत लगवाते हैं, चांदी के लगाते हैं. So what is that? एक्चुअली सी दो चीजें हैं, आपने मुझसे पूछा कि एक तो कैविटी फिलिंग का पूछा आपने और एक मिसिंग टूथ को रिप्लेस कराने का पूछा, ठीक है। जो कैविटी फिलिंग होती है ना, इट्स लाइक काफी टाइप की फिलिंग्स होती हैं। पोस्टीरियर्स में जो पीछे के जो दांत होते हैं, समटाइम्स उनका अनाटमी ऐसा होता है जो उनके ग्रूव्स और फिशर बहुत डीप होते हैं या डिप्रेशंस होते हैं उनपे, वहां पे बार बार खाना फंसता है। तो ऐसे एरियाज में प्रिवेंशन के लिए जो हम फिल करते हैं दैट इज फिट एंड फिशर सीलिंग। उस पे दांत के ग्रूव्स और जो भी डीप डिप्रेशंस हैं उसको एक बार सैंड ब्लास्ट करके या उसको एक बार एच करके उस एरिया को थोड़ा क्लीन करके वहां पे एक फिट एंड फिशर भरा जाता है, जिसमें उस फिलिंग में फ्लोराइड कंटेंट होता है जो केरीज डेवलप नहीं होने देता है। तो ये सब आता है सब प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री में, राइट। इसके अलावा जब कैविटी का प्रोग्रेशन स्टार्ट हो चुका है, पेशेंट इतना अवेयर है, उसको पता है कि मेरे कैविटी बन गया है, तो बहुत इनिशियल स्टेज में इनामल केरीज में हम दांत को क्लीन करके विद पूरा एरोटर बर्स से उसको पूरा क्लीन करके उसको स्मूदन करके प्रॉपर शेप एंड साइज देके हम उस पर फिलिंग करते हैं। जो फिलिंग्स के टाइप होते हैं जो पहले यूज की जाती थी दैट इज सिल्वर अमेलगम फिलिंग। उनमें क्या होता था कि वो उनकी स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी होती थी, मतलब आपने एक बार फिल करा गया आपकी फिलिंग 10 to 15 ईयर्स तक नहीं निकलती थी। तो पुराने जो डेंटिस्ट होते थे या जो भी क्वैक्स इनफेक्ट प्रैक्टिस करते हैं वो अभी भी सिल्वर अमेलगम फिलिंग्स यूज करते हैं, बट दीज आर वेरी आउटडेटेड। वो क्या होता है उनका स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छा होता है, वो निकलता भी नहीं, बट उनमें माइक्रो लीकेज बहुत हो जाता है, मतलब कि वो श्रिंक पॉलीमराइज उनका श्रिंकेज होने की वजह से आसपास दांत का जो इन डीपर एरिया में है वहां पे री इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं या कैविटी डेवलप होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए वो आउटडेटेड हो गई है, और इसके अलावा वो फिलिंग्स नेचुरली एक अच्छी भी नहीं लगती, एस्थेटिक नहीं होती। तो जो एस्थेटिक फिलिंग्स हैं उसमें कंपोजिट्स फिलिंग्स आती है, वो रेजिन बेस्ड फिलिंग मटेरियल होता है दैट इज मेड अप ऑफ द ग्लास एंड पॉलीमर्स, राइट। तो उससे बना होता है वो, तो उनकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है और वो एस्थेटिक भी होते हैं देखने में। इसपे पोस्टीरियर जो फिलिंग्स होती हैं उसपे फिलर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए वो दैट इज यूज फॉर द फिलिंग, जिसमें स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी होती है एंड वो पीछे के दांतों में लॉन्ग टर्म से चलती रहती है। बट स्टिल मैं फिर भी यही बोलूंगी कि जब भी आप फिलिंग कराएं, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार फिलिंग करा लिया तो उसके दांत में आपको कभी फिर प्रॉब्लम नहीं होगी या फिलिंग को आपकी दोबारा निकलेगी नहीं। तो इसलिए रेगुलर डेंटल चेकअप इज वेरी नेसेसरी कि कहीं वो फिलिंग निकल तो नहीं गई है कुछ खाने से, या सपोज उसमें कोई माइक्रो लीकेज तो नहीं हो रहा है, क्योंकि श्रिंकेज कंपोजिट्स में भी थोड़ा बहुत होता है चाहे कितना भी अच्छा फील करें, और आपने सपोज प्रॉपर ब्रशिंग वहां पे नहीं की, ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करी, वहां वापस से फूड इनलॉजमेंट हो रहा है, तो वो सब रेगुलर चेकअप कराना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार फिल करा लिया और आप स्केलिंग करा लिए तो आपको दोबारा कभी डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एवरी 6 मंथ्स या एवरी 1 ईयर आपको फिर वापस अपने डेंटिस्ट के पास आपको वो फीलिंग्स को रीचेक करवाने जाना चाहिए कि दोबारा वो फीलिंग प्रॉपरली है, अगर नहीं है तो उसको दोबारा से रीफिल करवाइए, और नहीं तो एटलीस्ट उस फिलिंग की पॉलिशिंग करवा लीजिए। तो दीज आर द थिंग्स वो जो एक ध्यान रखना चाहिए, ये सब चीजें हैं। Okay, so you spoke Yeah. about cosmetic dentists, right? So what are or who are cosmetic dentists and what do they do? Just say, also you spoke about smile technology or smiling technology or something like that. So could you also tell us a little about that? Yeah, cosmetic dentistry actually, in cosmetic dentistry कुछ ऐसे procedures होते हैं that we
by through we can enhance the patient's smiles. Yeah, which, like if someone has a crooked teeth, if someone has a overlapping teeth, midline diastema, any discoloration, fluoride discoloration, ऐसा कुछ है, गम्स का कलर बहुत डार्क है, राइट, तो ये सब प्रोसीजर्स हैं जो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में आते हैं. तो मेन जो चीजें जो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में जो प्रोसीजर्स करे जाते हैं, वन इज द टूथ वाइटनिंग. टूथ वाइटनिंग में कुछ एक केमिकल बेस्ड एक मटेरियल होता है जो दांत की लेयर पे इनामल पे लगाया जाता है, बट उसका जो रिजल्ट होता है वो दैट इज वेरी टेम्पररी, 6 months या 1 year पे, क्योंकि आप कुछ भी खाएंगे वो वापस से वो ब्लीचिंग मटेरियल वो वापस से वो वाइटनिंग दोबारा सस्टेन नहीं रहती, वो दोबारा से स्टेन्स आने के चांसेस होते हैं. तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द ब्लीचिंग. तो ब्लीचिंग के बहुत ही एक लिमिटेड रिजल्ट्स होते हैं. इसके अलावा जो और कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में आते हैं दैट इज विनेयर्स. द विनेयर्स इज अगेन टू टाइप्स, द कंपोजिट विनेयर्स एंड सेरामिक विनेयर्स. कंपोजिट विनेयर्स तो जैसे मैंने आपको रेजिन बेस्ड मटेरियल के बारे में जो बताया था वही होता है, बट एस्थेटिक्स और एंटीरियर दांतों पे किया जाता है तो उसमें फिलर कंटेंट कम होता है एंड नैनो पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा पॉलिश्ड मटेरियल होता है. तो वो आपकी प्रॉपरली शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग उसको मटेरियल को प्रॉपरली डिजाइन किया जाता है, दांतों के ऊपर अप्लाई किया जाता है ओनली द फेशियल सरफेस ऑफ द दांत की आउटर लेयर पे ओनली. सिरेमिक लैमिनेट्स होते हैं, वो टेक्निकली बेस्ड होते हैं, लैब से बनकर आते हैं एंड वो बॉन्ड किए जाते हैं टूथ की आउटर लेयर. तो दैट इज द सिरेमिक लैमिनेट्स. तो दीज आर द प्रोसीजर. इसके अलावा डीपिगमेंटेशन ऑफ गम्स भी किया जाता है, लेजर्स, they are also included in the cosmetic dentistry. So basically cosmetic dentistry is to enhance the patient's smile by changing the shape and size and the form of the teeth according to your facial profile. So this is all about cosmetic dentistry. Okay, so what I thought cosmetic dentistry was कि they alter the muscles also, which are around the oral cavity. I had that idea in my mind. So No, thank you for not that, clarifying. not muscles, but definitely something soft tissue से related हम कुछ changes कर सकते हैं. Suppose if someone has a gummy smile, तो like gingiva crown lengthening करी जा सकती है. गमी स्माइल्स में सपोज आपका गम एरिया बहुत ज्यादा विजिबल है और क्राउन एरिया कम विजिबल है, तो ऐसे केसेस में गमी स्माइल करेक्शन के लिए लेजर्स यूज किए जाते हैं और जो आपकी जो गम की शेप एंड साइज को करेक्ट की जाती है थ्रू लेजर्स एंड और वो अकॉर्डिंग टू फेशियल प्रोफाइल बहुत इंप्रूव होती है और डेफिनेटली गिव ए better results. Right. Okay, so what I also used to come across was gum bleeding. Gum bleeding is one of the things Sorry, I interrupt you. You said ना कि about musculature, ये जो muscle से related जो changes होते हैं, that will all come into the facial aesthetics. That right. not in the part of the cosmetic dentistry. Cosmetic dentistry is a part only that include into the oral cavity, right? And आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं about alteration of musculatures, so that is all related to the facial aesthetics. In that uses Botox. That's not part of the oral health, but I'm just telling you this is all included in the facial aesthetics, right? Absolutely. Yeah. So yeah, I was talking about gum bleeding. Gum bleeding is another most common thing that everyone comes across. Yeah. So what is the reason behind gum bleeding? How to stop gum bleeding? क्योंकि जब हम brush करते हैं, we spit out and we see blood in it, or we eat an apple, we see blood in it. Advertisements में भी कितना सारा ऐसे दिखाते हैं. So what is gum bleeding and how to stop it? Gum bleeding is there are many reasons of the gum bleeding. It's not a single one. The main reason of the gum bleeding is due to the inflammation of gum. कुछ भी खाते हैं अगर आपने इसको प्रॉपर्ली क्लीन नहीं किया, डिपॉजिट्स हैं गम्स के अराउंड इट, बिकॉज टूथ इज लाइक टूथ स्ट्रक्चर ओनली जो दांत होता है वो एनवलप्ड होता है गम्स और उसके नीचे होती है बोन. ठीक है, तो पूरा जो सपोर्ट होता है वो टीथ का वो गम्स और बोन्स के साथ होता है. इन्फ्लामेशन या कोई भी तरह का फूड डिपॉजिट की वजह से जो भी इन्फ्लामेशन होता है दांत की मसूड़ों की तरफ वो गम को इन्फ्लेम करता है. दैट्स द मेन रीजंस ऑफ द गम ब्लीडिंग. अगर वो इनिशियल स्टेज पे, जिसको हम जिंजिवाइटिस बोलते हैं इन डेंटिस्ट्री, अगर वो इनिशियल स्टेज पे उसका करेक्शन हो गया, उसका ट्रीटमेंट हो गया, आपने प्रॉपर्ली स्केलिंग करवा ली और आप प्रॉपर ओरल हाइजीन भी मेंटेन कर रहे हैं घर पे एंड प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक भी मेंटेन कर रहे हैं, तो उससे डेफिनेटली वो चीज वहां पे स्टॉप हो सकती है. बट इफ इट प्रोग्रेसेस टू द बोन, जो दांत को सपोर्ट करके रखती है, तो वो कन्वर्ट हो जाती है पेरिडोंटाइटिस, दैट इज एडवांस डिजीज.
एडवांस डिजीज ऑफ द जिंजिवाइटिस दैट इज कॉल्ड पेरिडोन्टाइटिस, जिसको हम लेमन लैंग्वेज में पायरिया भी बोलते हैं। तो वो जब एक बार गम्स जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो बोन तक पहुंच जाता है, वो धीरे धीरे वहां से बोन लॉस होना चालू हो जाता है, तो वहां से दांत लूज होने लगता है, और ऐसे केसेस में फिर मोबिलिटी वगैरह ये सब चीजें, तो उस केस में रिवर्सिबल होना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेन द रीजन ऑफ द गम ब्लीडिंग इज द जिंजिवाइटिस। इसके अलावा सिस्टमिक प्रॉब्लम भी होती है, जैसे लाइक डेफिशिएंसी, सम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, स्कर्वी, विटामिन सी, सम प्रेगनेंसी में भी जिंजिवाइटिस होता है अगर आपने प्रॉपर्ली केयर नहीं की। स्ट्रेस इंड्यूस्ड जिंजिवाइटिस भी होता है। सम विटामिन और मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी से भी जिंजिवाइटिस होता है। तो जस्ट मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि वॉट एवर माउथ इज अ विंडो इनटू द हेल्थ ऑफ बॉडी। तो कुछ भी सिस्टमिक डिजीजेस होती हैं, तो उनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो ओरल कैविटी में भी दिखाई देते हैं। लाइक विटामिन सी डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग गम्स वगैरह होते हैं, और एप्थस अल्सर्स वगैरह हो सकते हैं B12 की डेफिशिएंसी से। तो ये सब सारी चीजें हैं जो फॉलो करनी चाहिए, इसलिए ओरल हेल्थ इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज ऑफन नेग्लेक्टेड। So that means oral health is also very important for gut health also, right? That is Definitely. Yes. okay. So since tongue comes as a part of oral like health and everything, we see कि कुछ लोगों के जो टंग होते हैं that's discolored, और या उस पे एक white layer form हुई भी होती है. So what is that? I mean, tongue is a part of mouth, right? तो वो कैसे does it come under dentistry or what is it? Yeah, definitely it's a part of the oral cavity only. तो improper cleaning of the tongue, जो tongue cleaner use नहीं करते, और improper dietary habits, इसकी वजह से depigmentation of tongue या decalcification, मतलब detastification जो भी होता है, that is related to poor oral hygiene, and some, again मैं कहूँगी, some nutritional deficiency also, ये टंग डिस्कलरेशन, या कुछ बहुत लॉन्ग टर्म से माउथ वॉश यूज करने से भी ही टंग डिस्कलरेशन होता है। Okay, also breath can be a factor, na? Like if someone has diabetes, has a different kind of breath that you can smell and पता चल जाता है कि यार इसको तो diabetes है. Yeah, definitely. Like I said, ना oral manifestation of systemic disease, तो जो कीटोनिक स्मेल होती है उसको बोलते हैं। जैसे डायबिटीज पेशेंट में जनरली हमारे पास कोई सीवियर डायबिटिक पेशेंट होता है, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो एक कीटोनिक स्मेल उनके मुंह से आती है, तो उससे डायग्नोस हो जाता है कि समवन इज हैविंग डायबिटीज, या तो पेशेंट को पता नहीं है और या हमको लग जाता है पता है कि शी इज अ डायबिटिक पेशेंट। So that is the same thing, oral manifestation of systemic diseases. Okay, so there are a few questions जो कि हैं that are supposed to be asked to you that I've got. So we'll start off with the questions. Okay, so the first question that I have here is it safe to open a sealed glass bottle cap with your teeth? Obviously, कुछ लोग नहीं होशियारी मारने के चक्कर में अखरोट या open like beer bottles or Pepsi bottles and cans with their teeth. So is that safe? Obviously, I think that is not. Definitely not. It's not safe, क्योंकि ओपन बॉटल से जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इसके इनामल फ्रैक्चर हो सकता है, इट कैन गिव डायरेक्ट इंजरी टू द पल्प, जो दांत का जो नर्व होता है वहां तक फ्रैक्चर इंड्यूस हो सकता है। समटाइम्स कई बार वो चीजें रेस्टोरेबल भी नहीं होती है, there are some particular fractures जिसको हम रिस्टोर भी नहीं कर सकते, लाइक इनामल फ्रैक्चर्स, वहां पे आप कॉस्मेटिक फिलिंग से आप उनको रिस्टोर करके सही कर सकते हैं, ठीक है। बट सम वर्टिकल फ्रैक्चर्स कुछ ऐसे होते हैं जिस टाइम उस समय दांत निकालना ही पड़ता है, तो डेफिनेटली मतलब इस चीज के लिए मैं एकदम मना करूंगी, इट्स वेरी डेंजरस प्रोडक्ट। Right. Second is what type of toothbrush and toothpaste is recommended? Obviously इतने सारे ads देखते हैं हम, आपके toothpaste में नमक है, ये चारकोल है या lemon है, so which is the apt toothpaste that a person should use जो कि basic उसमें कुछ teeth के लिए हो? Actually toothpaste and toothbrushes के बारे में I will suggest you कि बहुत ही sensibly choose करना चाहिए। It should be soft bristles होने चाहिए, मीडियम साइज होना चाहिए। कभी भी किसी भी मार्केट या स्टोर पे आप जाते हैं तो आप ये देखिए कि जो आपका जो टूथब्रश है वो ADA सर्टिफाइड है या नहीं, दैट इज सर्टिफाइड बाय द अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन, ठीक है। ब्रिसल्स सॉफ्ट होने चाहिए, एंगल ब्रिसल्स हैं तो वो बेटर रहेगा। एंड आजकल एडवांस ब्रशेस में पाउडर ब्रशेस आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रशेस जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत अच्छे हैं, जिसमें ओरल बी एंड फिलिप्स सोनिकेयर के जो ब्रशेस हैं वो बहुत अच्छे हैं।
टूथपेस्ट के लिए मैं ये बोलूंगा, फॉर अ रेगुलर टूथपेस्ट, अगर इफ मतलब इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन द माउथ, ओरल कैविटी वगैरह में ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर भी आपको एक फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट तो यूज करना ही चाहिए। फ्लोराइड क्या करता है, इट इनहांस, इट स्ट्रेंथन द इनेमल। जो भी लाइक एसिड्स बनते हैं दांतों में, उसका रिडक्शन कम होता है। वो दांत की सलाइवा से मिलके एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, दैट इज फ्लोरोएपिटाइन। तो जो फ्लोराइड होता है वो एक इनेमल को स्ट्रॉन्ग करता है, जो वेयर हो जाता है कुछ भी मीठा कार्बोहाइड्रेट्स या कुछ भी खाने से। तो फ्लोराइड टूथपेस्ट के लिए मैं सजेस्ट करूंगी, फ्लोराइड रिंसेस आर ऑलवेज गुड। तो ये सब चीजें हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए। इंटरडेंटल ब्रशेस, स्टार्ट यूजिंग द इंटरडेंटल ब्रशेस एंड द डेंटल फ्लॉस। जैसे कि मैंने बताया, सबसे ज्यादा कैरीज जो डेवलप्स होती है वो दांतों के बीच में डेवलप होती है। तो इंटरडेंटल ब्रशेस एंड द फ्लॉस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज। तो इन नॉर्मल ब्रश के अलावा फ्लॉस, डेंटल फ्लॉस एंड इंटरडेंटल ब्रशेस, जो कोलगेट के भी बहुत अच्छे आते हैं और भी अच्छी कंपनीज के हैं, बस आपको ये देखना है कि वो एडीए सर्टिफाइड है या नहीं। Okay. इसके मेरा अलावा next question, in fact, यही था, is the floss really necessary? But I think you already answered that in the previous question. It is. जैसे हाँ, इट्स ओरल हाइजीन मेंटेनेंस में मैंने फ्लॉस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल बताया है कि कैसे यूज करना होता है। वो आप किसी भी, जो आपके भी फैमिली डेंटिस्ट है उनके पास जाके प्रॉपर टेक्निक सीखिए, कैसे फ्लॉस किया यूज किया जाता है, कैसे इंटरडेंटल टूथब्रशेस यूज किए जाते हैं, एंड इट्स वेरी नेसेसरी एंड डेफिनेटली आपको चेंजेस देखेंगे कि कैसे होता है। Right. So does our teeth need fluoride? I think वो भी आपने आंसर कर दिया है, that fluoride should be there in the toothpaste. Okay. Yeah. So how far does a mouthwash help? And fluoride for the reduction in the dental caries and it strengthen the enamel. जो भी हम खाते हैं मीठा, कार्बोहाइड्रेट्स एंड सुक्रोज बेसिकली, तो वो क्या करता है, एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि जो बैक्टीरिया को जो एसिड्स चाहिए होता है, वो जो भी स्ट्रेंथन चीज चाहिए होती है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, वो कार्बोहाइड्रेट और सुक्रोज में सबसे ज्यादा होता है। तो व्हाट दे डू, वो जो एसिड होता है वो इनामल, जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है अपनी बॉडी का, उसको डिग्रेड करता है, उसको डिग्रेड करता है। तो जैसे इनेमल वीकन होगा तो वहां पे कैविटी प्रोडक्शन बहुत इजीली हो जाएगा। तो इसलिए, और फ्लोराइड क्या करता है, वो सलाइवा के साथ मिलके फ्लोरोएपिटेट एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, जिससे वजह से वहां पे एक इनेमल को स्ट्रेंथन मिलती है, रीमिनरलाइज होता है इनेमल, तो एक रिवर्सिबल कंडीशन हो जाती है। Right. So how far does a mouthwash help? Mouthwash, I mean, it's considered, I mean, सबके घर में पड़ा होता है, बस पड़ा रहता है. Mostly people buy it but then don't use it. तो उसका क्या, what are the effects of a mouthwash? माउथवॉश देखिए, ये कह सकते हैं, इट्स नॉट कि सब कुछ माउथवॉश ही कर सकता है, कि आपने माउथवॉश किया तो आपने ब्रशिंग नहीं करी। क्योंकि कई लोग ऐसे भी करते हैं कि ठीक है बाहर जाना है बट स्मेल नहीं है, ब्रीदिंग सही रहे और थोड़ा फ्रेश फील हो, तो दे जस्ट यूज द माउथ वॉश एंड अपना काम करने चले जाते हैं। बट वो चीज नहीं होनी चाहिए। माउथ वॉश पे आप पूरा रिलाई नहीं कर सकते। हाँ, इफ डेंटिस्ट ने आपको सजेस्ट किया है, इफ यू हैव अ जिंजिवाइटिस और पेरियोडाइटिस, तो माउथ वॉश आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। माउथ वॉश बेसिकली क्लोहेक्सिन ग्लूकोनेट, जो एक एंटीबैक्टीरियल होता है, वो जनरली सारे माउथ वॉश में पाया जाता है, जनरली सब माउथ वॉशेस में होता है। तो वो एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश होता है, वो जब भी सलाइवा में जो भी पीएच, जो भी एसिड्स प्रोड्यूस होता है, उसको उस मतलब उसको कम करता है, उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। वन थिंग आई विल आल्सो ऐड in the maintenance of oral hygiene, that is the warm saline goggles that I personally suggest to my every patient. मैं कोई भी प्रोसीजर करती हूँ तो सलाइन गॉगल्स के लिए मैं जरूर एडवाइस करती हूँ, बिकॉज दिस सलाइन गॉगल्स, क्योंकि माउथ वॉश की बात आ रहा है तो वी कैन से सलाइन गॉगल्स इज अ नेचुरल माउथ वॉश। तो सलाइन गॉगल्स क्या होता है, सलाइन वो जो भी एसिड्स प्रोड्यूस होता है ओरल फ्लोरा में, उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो अगर एसिड्स कम होंगे तो डेफिनेटली इनेमल डिमिनरलाइजेशन कम होगा एंड इनेमल स्ट्रेंथ रहेगी। एंड जो भी बैक्टीरिया वगैरह होंगे, वो जो जनरली आप जानते ही हैं कि जो भी बैक्टीरियाज एंड सब होते हैं, ये एसिडिक एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं। तो वार्म सलाइन गार्गल व्हाट दे विल डू, इट विल डिक्रीज द एसिडिटी एंड उसको अल्कलाइन बनाएंगे ओरल कैविटी को, एंड वहां पे बैक्टीरिया इन्फेक्शंस और जर्म्स प्रोडक्शन की जो कैपेबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी। तो वार्म सलाइन गार्गल्स और द ल्यूकवार्म वाटर से सलाइन डाल के अगर आप गागल्स करेंगे दिन में 2 बार, तो इट विल एक्ट एज अ नेचुरल माउथ वॉश। माउथ वॉश में सम फ्लोराइड माउथ वॉश भी होते हैं, दैट इज फ्लोराइड रिंसेस, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। इफ समवन हैव अ टेंडेंसी टू प्रोड्यूस मोर कैविटीज ज्यादा है,
तो उस केसेस में भी फ्लोराइड रिंसेस देते हैं। माउथ वॉश में एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना होता है, अल्कोहल बेस्ड माउथ वॉश है तो उसको अवॉइड करिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म आप अल्कोहल बेस्ड माउथ वॉश यूज नहीं कर सकते। व्हाट दे डू, अल्कोहल बेस्ड माउथ वॉश में क्या होता है कि वो जीरोस्टीमिया के चांसेस होते हैं, चांसेस ऑफ द ड्राई माउथ, ठीक है। एंड द अदर थिंग्स द टेस्ट डिकैल्सिफिकेशन वो डेवलप होने लगती है। तो चूज योर माउथ वॉश वाइजली एंड द सेम थिंग आई से कि इट शुड बी स्पेसिफाइड बाय द एडी, अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन, क्योंकि प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑफ क्लोहेक्सिडिन ग्लूकोनेट उसमें होती है, तो इस चीज के लिए इट शुड बी स्पेसिफाइड। Okay. So another question, what are the early signs of dental trouble? अर्ली साइन, जैसे बहुत लोग इग्नोर करते हैं इस चीज को कि अगर थोड़ा सा दांत में दर्द हो रहा है तो दे लाइक अरे दांत में दर्द है, लौंग खा लेते हैं या लौंग का तेल लगा लेते हैं सो ठीक हो जाएगा। सो व्हाट आर द अर्ली ट्रबल्स दैट अ पेशेंट गेट्स एंड जाना चाहिए डॉक्टर के पास? अर्ली ट्रबल तो देखिए, ट्रबल है तो इट मींस देयर इज अ डेंटल प्रॉब्लम, तो पेशेंट डॉक्टर के पास आ ही जाता है। अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स से यही बोलूंगी कि अगर फूड इनलॉजमेंट है और देयर इज मतलब अगर आपको खुद को लगता है आपके दांत में डेंटल कैविटीज है, केरीज डेवलप हो रही है या कुछ चांसेस है केरीज डेवलप होने के, तो उस करेक्ट टाइम पे अगर आप डेंटिस्ट के पास विजिट कर लेंगे तो डेफिनेटली वो बहुत अर्ली स्टेजेस में वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी और रूट कैनाल ट्रीटमेंट को इट कैन बी अवॉइडेड। तो इसमें एक ब्लीडिंग गम्स भी है एंड डेफिनेटली अर्ली डिटेक्शन ऑफ केरीज, द टू थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। Okay. So what are the dental exams that are there? जैसे हम सीटी करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं फॉर डिफरेंट रीजंस, तो डेंटल में ऐसा कुछ है कि स्कैन्स करवाते हैं और व्हाट अदर एग्जामिनेशंस आर देयर? एक्चुअली एक्सरेज तो हमारे पास क्लिनिक पे ही होते हैं, एडवांस्ड एक्सरे भी आ गए आरवीजी जो हम लोग अपनी क्लिनिक्स पे रखते हैं, वो सफिशिएंट होता है फॉर द रूटीन डेंटिस्ट्री। इसके अलावा जो एडवांस प्रोसीजर्स होते हैं उसमें सीबीसीटी की कोन बीम टेक्नोलॉजी, जैसे 3D इमेज हमको पता चल जाती है, लाइक वो जो इमेज होती है आरबीजी जो एक्सरेज हम यूज करते हैं दैट इज 2 डायमेंशनल इमेज होती है। जो सीबीसीटी जो एडवांस होती है वो 3 डायमेंशनल इमेज होती है। तो दैट इज द सीबीसीटी मोस्ट कॉमनेस्ट होता है, जिसमें हमें इम्प्लांट सर्जरी में और सम फ्रैक्चर केसेस में, जैसे आई टोल्ड यू कि लाइक आपने पूछा था कि ओपन बॉटल खोलने से मतलब क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, तो उस कुछ फ्रैक्चर लाइंस होती है जो हमें 2D इमेजेस में दिखाई नहीं देती हैं, तो वो 3D इमेजेस होती है। वो जनरली हमें अगर सपोज कोई डिफिकल्ट रूट कैनाल केसेस है, सपोज एक एक्स्ट्रा कैनाल, क्योंकि जो टूथ का स्ट्रक्चर होता है दैट रूट स्ट्रक्चर इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वो दिखता एक है पर उसमें जो कैनाल्स होती है इट्स लाइक द टीथ की ब्रांचेस होती है, वो कहीं से भी निकल जाती है, तो इट्स लाइक दैट। तो कई बार बहुत अच्छा रूट कैनाल करने के बाद भी, प्रॉपर क्लीनिंग शेपिंग एंड करके बाद भी पेशेंट का पेन नहीं जाता, तो ऐसे केसेस में हमें एडवांस एक्सरेज की जरूरत पड़ती है, जिसमें 3D सीबीसीटी इमेजेस की जरूरत पड़ती है, जिसमें हमें माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स भी अंदर कैनाल्स की और रूट की पता लग जाती है। तो दैट ऑल कम्स इन द एडवांस डायग्नोस्टिक सिस्टम, तो इसमें सीबीसीटी मेन आता है। या So moving on to the next question, what are sealants and what do they do? सीलेंट्स, पिट एंड फिशर सीलेंट्स, जैसे मैंने आपको प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री के बारे में बताया था, सीलेंट्स आर द सेम लाइक दे आर अर्ली डायग्नोस, अगर इनिशियल स्टेज में ही अगर वहाँ पे सीलेंट्स का यूज हो गया, सीलेंट्स फिलिंग मटेरियल ही होता है, उसमें जब भी जो दांत के जो डिप्रेशंस हैं, जो फिशर्स एरिया है या इंटरडेंटल एरियाज हैं, और स्पेशली इन चिल्ड्रंस जहाँ पे यंग परमानेंट टूथ है, जैसे लोअर 6 जो सबसे पहला जो एक परमानेंट टूथ आता है, तो उस वहां पे इफ समवन हैज ए केरी ससेप्टेबिलिटी, ज्यादा केरीज डेवलप होने के चांसेस हैं, इनेमल वीक है, मीठा ज्यादा खाते हैं या प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते, तो ऐसे केसेस में पिट एंड फिशर सीलेंट्स यूज किए जाते हैं। तो जहाँ पे भी डिप्रेशन है, जहाँ पे डीपली ग्रूव है, तो वहां पे केरीज डेवलप होने से पहले ही उसी एरिया को थोड़ा क्लीन करके उसको थोड़ा सा शेप देकर वहां पे एक फिलिंग मटेरियल भरा जाता है, दैट इज कॉल्ड द पिट एंड फिशर मटेरियल। रेजिन बेस्ड ही होता है, आजकल फ्लोराइड बेस्ड पिट एंड फिशर सीलेंट्स भी आते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, फ्लोराइड क्या करता है, वो सलाइवा के साथ मिलकर फ्लोरोएपेटाइट बनाता है, जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जो इनेमल को स्ट्रेंथन करता है, जैसे केरीज डीपली प्रोग्रेस नहीं कर पाती। तो दैट इज द पिट एंड फिशर सीलेंट्स, जो मोस्टली यंग पेशेंट्स और यंग एडल्ट्स में यूज किया जाता है। Okay. So एक और क्वेश्चन है, that is, are sweets and ice cream bad for my teeth? I am sure ज्यादा हर चीज, कोई भी चीज ज्यादा is bad, right?
हर चीज का जो स्वीट एंड आइसक्रीम हम भी खाते हैं, सब खाते हैं एंड खानी भी चाहिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, पर डेफिनेटली उसके बाद प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जैसे आई एक्सप्लेन यू अर्लियर आल्सो, सुक्रोज जो होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं एंड वो इनेमल को डीमिनरलाइज करते हैं। तो इसलिए अगर प्रॉपर क्लीनिंग मेंटेन करेंगे, प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक प्रॉपरली फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली वो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। आप अच्छे से खाइए, फिर उसके बाद अच्छे से ब्रश करिए और अपनी डाइट का ध्यान रखिए, दैट्स द मेन थिंग। Okay, so I've got one more question from the audiences. In fact, question is that I have had been suffering from recurrent aphthous ulcers throughout my life. So aphthous ulcers hota kya hai, and what is the treatment, or how to take care about it? Aphthous ulcer is a same, it's like a normal oral ulcers only. इसका पहले कॉज देखना पड़ेगा, अगर रिकरेंट हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है। लाइक मेनली जो कॉज होता है कि सपोज इफ देयर इज इंजरी और ट्रॉमा टू द ओरल म्यूकोजा, सपोज किसी टीथ से ही ट्रॉमा हो गया है, इफ या कोई सिस्टमिक डिजीज है, कोई लाइक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी होते हैं एप्थस अल्सर। एंड द मेन रीजन कुछ अल्सर्स के वो स्ट्रेस भी होता है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड एप्थस अल्सर दे आर वेरी कॉमन। विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से भी रिकरेंट एप्थस अल्सर्स के चांसेस होते हैं। एंड द वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ एप्थस अल्सर इज स्टोमेटाइटिस, गैस्ट्रिक ट्रबल या गैस्ट्रिक अपसेट की वजह से भी ही अल्सर्स होते हैं। इनफैक्ट गैस्ट्रिक अपसेट की वजह से भी ही इनामल के भी वेयर ऑफ होने के चांसेस होते हैं। तो एप्थस अल्सर्स में यही है कि इफ यू हैव एप्थस अल्सर्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया वार्म सलाइन गॉगल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर किसी को रिकरेंट एप्थस अल्सर्स हैं तो सलाइन गॉगल्स करिए, वो डेफिनेटली जो भी बैक्टीरिया वगैरह होगा जिसकी वजह से जर्म्स है जिसकी वजह से बार बार अल्सर्स हो रहे हैं, इफ इट्स रिलेटेड टू एनी इन्फेक्शन इन द माउथ, इसकी वजह से है, तो डेफिनेटली वो सबसाइड होंगे, उसको हेल्प करेगा उसको रिड्यूस करने में बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। इसके अलावा मल्टीविटामिन लेना चालू करिए, विटामिन बी, फॉलिक एसिड, विटामिन डी, विटामिन सी, तो ये सब अल्सर्स को एज अ काम करेंगे। माउथ वॉशेस भी आप यूज कर सकते हैं, प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन रखिए। एंटीबायोटिक एंटी इन्फ्लेमेटरी भी दे सकते हैं। जो एंटीबायोटिक्स जनरली जो अल्सर्स में जो वर्क करती है दैट इज टेट्रासाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन के भी आप गागल्स कर सकते हैं, टैबलेट लेके 250 mg, उसको पानी में घोल के उसके गागल्स करिए। एंड कोई भी लिडनोकेन, कोई भी जेल जो उसको नम करेगा अल्सर को, तो वो भी इट विल बी हेल्पफुल। Okay, So these are the being a dentist, I mean, when someone pursues this field, काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि there's a lot of competition in being a dentist. इतने सारे dentist already है, dentist बन के क्या या क्या करूंगा. So what is that mentality about people or in people कि dentist बनना is कि चलता है या कुछ भी है types. So can you tell our audiences कि dentist बनना is not just कुछ भी, पूरी पढ़ाई करनी पड़ती है. It's just like MBBS. It's a field of medicine. Please go ahead and tell us about pursuing dentist. See, pursuing in dentistry से depends on person to person, आपका interest किस चीज में है, ठीक है। If you are really interested into dentistry, तो I would say कि डेंटिस्ट्री जैसी कोई ब्रांच नहीं है, बिकॉज आई एम प्रैक्टिसिंग फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि डेंटिस्ट्री मैंने एक कुछ वेस्ट किया है या मैं किसी और प्रोफेशन में होती। मुझे ऑनेस्टली ऐसा बिल्कुल फील नहीं होता, बिकॉज आई एम इनटू माय प्रोफेशन इज लाइक माय, मतलब कि मैं सोच भी नहीं सकती अपनी लाइफ विदाउट डेंटिस्ट्री। तो मेरे लिए ऐसा नहीं है, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। आप किसी भी फील्ड में जाए, कॉम्पिटिशन और रिसेशन हर फील्ड में है, इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। और अभी तो डेंटिस्ट्री में इतनी एडवांसमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया, इतना प्रिसीजन डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस होने लगी है आजकल, तो इतना अच्छा है, इतना स्कोप है डेंटिस्ट्री में। अगर आप अच्छी डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस करें, प्रॉपर अच्छे स्किल्स के साथ, अच्छी जगह पर अगर आप हैं, डेफिनेटली प्लेस बहुत मैटर करता है कि आप कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। लाइक इन मुंबई और मेट्रो सिटीज में वहाँ बहुत स्कोप है, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट्स आर सो एजुकेटेड कि वो समझते हैं कि क्या कर रहे हैं हम लोग। दे वैल्यू योर प्रोफेशन, दे वैल्यू योर स्किल्स, तो डेफिनेटली वो मनी भी देते हैं। और अगर आप अच्छा काम करेंगे तो डेफिनेटली वो काम दिखेगा भी, पेशेंट भी पैसे देगा, यू फील इंटरनली आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो डेफिनेटली ये तो एक मिथ है, जैसे मैं बोलूंगी, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट जितना स्कोप डेंटिस्ट्री में है
उतना आई बिलीव किसी में नहीं है. हाँ, बट डेफिनेटली डेंटिस्ट्री रिक्वायर्स सो मच ऑफ स्किल, सो मच ऑफ हार्ड वर्क एंड डेफिनेटली डेडिकेशन, बिकॉज इट्स अ आर्ट ऑल्सो. इट्स अ आर्ट ऑल्सो. आपको नॉलेज के साथ आर्ट भी डिफाइन करनी है. इसके अलावा आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत एक्सर्शन भी करना पड़ता है. रूट कैनाल करने को कोई भी कर सकता है, बट अगर आपको कोई भी चीज परफेक्शन से करनी है तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड स्किल. तो ये सब चीजें जाती हैं. तो इतना एडवांसमेंट है डेंटिस्ट्री में. तो डेफिनेटली एडवांसमेंट क्यों है? क्योंकि स्कोप भी है. यस, आई वुड सजेस्ट कि एक बेटर प्लेस होता है तो आपको कॉन्फिडेंस जरूर बूस्टअप होता है. बट ऐसा नहीं है कि डेंटिस्ट्री में अब कुछ भी नहीं बचा है. ऐसा कुछ भी नहीं है. डेंटिस्ट्री में बहुत कुछ बचा है. इनफैक्ट कई लोग हैं जो डेंटल एस्थेटिक्स या डेंटल कॉस्मेटिक को छोड़ के फेशियल एस्थेटिक्स पे जा रहे हैं. सबका अपना अपना चॉइस होता है. बट मुझे तो लगता है पहले डेंटिस्ट्री में तो कर लो, क्योंकि डेंटिस्ट्री में इतना सब कुछ है करने को. उसके बाद आप जाओ. जैसे कि मैं डेंटिस्ट हूँ तो मैं रूट कैनाल अच्छा कर सकती हूँ और मैं कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट अच्छा कर सकती हूँ, और मैं चाहूंगी मैं इम्प्लांट भी बहुत अच्छा कर लूँ. क्योंकि इम्प्लांट में भी देयर आर मेनी थिंग्स, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इम्प्लांट एंड देयर मेनी थिंग्स इन द इम्प्लांट, लाइक बेसल कन्वेंशनल इम्प्लांट्स भी हैं, बेसल इम्प्लांट्स भी हैं. तो आप सीख सीख के क्या सीख लोगे? तो आप पहले डेंटिस्ट्री तो आप अच्छे से कर लो. दिस इज माई व्यूज, मेरा पर्सनल चॉइस है. बाकी जितने मोस्ट ऑफ द डेंटिस्ट जो गर्ल्स आजकल फेशियल एस्थेटिक्स भी करने लगे हैं. तो बट मुझे ऐसा लगता है कि अब डेंटिस्ट्री में बहुत सारी चीजें हैं करने को, तो वाई टू गो टू अदर प्रोफेशन. अब डेंटिस्ट्री में ही अच्छा करो. एंड इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, उनका इंटरेस्ट किस चीज में. जैसे फिलिंग में भी मैंने आपको बताया, रेस्टोरेशन में कितनी प्रिसीजन रेस्टोरेशन होने लगी है. यूज ऑफ रबर डैम्स, यूज ऑफ आइसोलेशन मटेरियल्स, इतना सब कुछ है कि पूछे ही मत. एंड आफ्टर ऑल यू, आप तभी कर पाएंगे जब आपका इंटरेस्ट है एंड यू हैव अ लॉट ऑफ support and support from family, support financially. तो काफी सारी चीजें मैटर करती हैं. तो ये सब चीजें हैं कि डेफिनेटली फॉर इट शुड बी, यू शुड हैव अ गुड सेटअप, good set of equipments, good set of dental materials. So dentistry is all about it. Okay, so as a dentist, how is your oral health routine, or what is one or two things that you do for your oral health that you can share with the audiences? I just maintain तो मैं रेगुलर डेंटल रूटीन जो मैं करती हूँ, सुबह उठते ही ब्रश करना प्रॉपरली तरीके से, बिकॉज आई नो, आई कैन फील इट. मैं इनिशियली चाइल्डहुड में मुझे जिंजिवाइटिस हुआ करता था, यू नो. अब नहीं है, क्योंकि मैं प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक फॉलो करती हूँ. आई मतलब डेफिनेटली एज अ डेंटिस्ट मुझे पता है मेरी कहाँ कहाँ क्या है, तो मैंने उनको रिफिल भी करवाया. पहले मेरी सारी सिल्वर फिलिंग्स हुआ करती थी, अब मैंने अपनी ही बैचमेट से सबको कंपोजिट से रिफिल करवाया प्रॉपरली. एंड मैं भी अपना खुद का भी 6 मंथ्स, मिनिमम 6 मंथ्स में मैं अपनी खुद की स्केलिंग करवाती हूँ एंड पॉलिशिंग करवाती हूँ. एंड डेफिनेटली प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट. Right. So how did your interest in dentistry start? I mean, कब start हुआ? Was it back in your school days that you thought कि अरे ये field अच्छी लग रही है, so let's just देखते हैं करके, या let's just apply for it? How was your interest into it? इंटरेस्ट की हम बोले तो डेफिनेटली मेरा ऐसा कुछ नहीं था मुझे डेंटिस्ट ही बनना है. इनफैक्ट मैं डेंटिस्ट बनना ही नहीं चाहती थी. बट ये जरूर था कि मुझे मेरे नाम के आगे डॉक्टर चाहिए, बिकॉज आई एम फैमिली ऑफ डॉक्टर्स. वी हैव अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स. माय डैड इज अ फिजिशियन. तो एक वो चीज था कि वो फैमिली लेगेसी कंटिन्यू रखनी है. तो वो चीज जरूर थी कि एंड यू थोड़ी एम्बिशियस थी बचपन से कि ये भी करना है, वो भी करना है. ये सब चीजें जरूर थी. बट जब डेंटिस्ट्री में आई आफ्टर 3rd ईयर ओनली, आई रियलाइज, मतलब वो पता चल जाता है खुद को कि आपको करना क्या होता है. एंड मतलब द पर्टिकुलर एज 15 to 20 ईयर्स में एटलीस्ट अपना पैशन तो पता चल ही जाता है. इस चीज में लेके मैं काफी श्योर थी कि मुझे जो करना है डेंटिस्ट्री में ही करना है. तो मैंने अपने 3rd ईयर से ही मैंने अपने जो आसपास क्लिनिक थे वहां पे जाना चालू कर दिया. मैं उनको एग्जामिन एज ऑब्जर्वेटर वहां पे जाती थी. फिर आफ्टर 3 to 4 ईयर्स, मतलब 3rd ईयर फाइनल कंप्लीट होते, इंटर्नशिप में ही मैंने कहीं ज्वाइन कर लिया था. एज असिस्ट कराने जाती थी मैं किसी मेरे सीनियर डेंटिस्ट के पास. एंड आफ्टर जैसे ही मेरा फाइनल ईयर कंप्लीट हुआ, स्टार्टेड माय ओन प्रैक्टिस, क्योंकि मैं काफी इनिशियल टाइम पे ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी. तो उसके बाद से चल ही रहा है और ग्रोथ हो ही रही है और सब अच्छा चल रहा है बाय गॉड ग्रेस. That is so great. So, Yeah. any last words on oral health or on your journey of being a dentist and starting off with your own clinic to our audiences जिनको interest है in dentistry, या जो, because I have met so many or spoke to so many students जो अभी NEET दे रहे हैं या जो अभी plan कर रहे हैं कि मुझे medicine field या science field में जाना है. So I've spoken to so many people, they come and ask me कि what do you think
I can go into. Then I was like, मैं नहीं बता सकती what you have to go in, but yes, I can tell you कि अगर कहीं जाना है तो what all people you can talk to, what all exams you can give. I can just give a gist on that. So any last words that you would want to give to the juniors or to the budding medicine Budding people? Yes. See, actually, I can say the same thing मैं repeat करूंगी. आपका इंटरेस्ट किस में है वो आपको खुद को जानना पड़ेगा, राइट. आफ्टर कंप्लीटिंग योर 10th अगर मेडिकल में ही जाना है तो आप एक बार एक्सप्लोर करिए, आप जाके देखिए किसी भी क्लिनिक्स में, आप काम करके देखिए आपको कैसा लगता है. क्योंकि डेफिनेट मेरी भी कई कजन्स कलीग्स हैं जिन्होंने आफ्टर बीडीएस कंप्लीट करने उन्होंने अपना प्रोफेशन स्विच कर दिया. तो इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट कि आप क्या चाहते हैं लाइफ में. अगर डेंटिस्ट्री में आना है तो वो बहुत जल्दी ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्लिनिक पे काम करना किस तरीके से होता है, आपको कितना पेशेंस रखना पड़ेगा इनिशियली, क्योंकि हाँ डेफिनेटली देयर इज सो मच ऑफ कंपटीशन ना. तो ये चीज भी है कि आपको बहुत ही ऑब्जर्वेंट होना पड़ेगा, कि बहुत ही इनिशियली आपको बहुत ज्यादा एक अटेंटिव रहना पड़ेगा कि हाँ प्रैक्टिस करनी है. क्योंकि कॉलेज से निकलने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि जो आप क्लिनिक में देख रहे हो, जो क्लिनिक में काम हो रहा है, दैट इज वेरी डिफरेंट. वो चीज आप कभी कॉलेज में नहीं सीखते, वो आप क्लिनिक्स में ही सीखोगे अपने फेलियर्स के साथ, अपने एक्सपीरियंसेस के साथ. तो ये सब चीजें खुद को आइडेंटिफाई करनी है कि आप करना क्या चाहते हैं. अगर रियली में डेंटिस्ट में इंटरेस्ट है तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर इट. इससे अच्छा कोई प्रोफेशन नहीं है. इसके बाद आई विल सजेस्ट कि मास्टर्स जरूर करना, मास्टर्स जरूर करनी चाहिए. नहीं तो कोई भी पीजीडीसीए या कोई भी डिप्लोमास, लाइक आजकल तो ऑनलाइन भी काफी स्कोप है. आप कोई लंदन यूनिवर्सिटी से या कहीं से भी, तो लंदन डेंटल इंस्टीट्यूट जिस तरीके से कराता है, जैसे एग्जांपल, क्योंकि मुझे भी करना है तो वो फेलोशिप्स वगैरह कर सकते हैं. कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में आ गया है, इम्प्लांट डेंटिस्ट्री आ गया है, तो काफी सारी चीजें. रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री अलग पार्ट है. रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री में फिलिंग्स ही काफी नहीं होते. आजकल बॉन्डेड रेस्टोरेशन आ गए हैं, जो कि मतलब कि रिडक्शन की, इतने टूथ रिडक्शन की जरूरत नहीं होती है. सिर्फ बॉन्डिंग मटेरियल से ही वो जो छोटे से शेल्स जो बनकर आते हैं टूथ कलर, वो दांतों पे लगाए दिए जा सकते हैं. ऑर्थो ट्रीटमेंट भी कितना एडवांस हो गया है आजकल. ब्रेसेस के अलावा इनविजिलाइन आ गए हैं, उसमें भी कुछ नहीं करना होता है. अभी जस्ट उसमें लैब सपोर्ट इतना अच्छा होता है क्योंकि हम सिर्फ इम्प्रेशंस लेके भेजते हैं एंड सॉफ्टवेयर से वो सब हो जाता है. एक मैंने आपको एडवांसमेंट में ओरल डिजिटल कैमरे के बारे में आपको नहीं बताया. ओरल स्कैनर्स आ चुके हैं आजकल क्लिनिक में, जिसमें हमको इम्प्रेशंस लेने तक की जरूरत नहीं पड़ती. स्कैन करके डायरेक्ट ही वो सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग लैब में भेज सकते हैं. इसके अलावा स्माइल डिजाइनिंग भी आजकल डिजिटली हो गई है. हम डायरेक्टली पेशेंट को दिखा सकते हैं कि दिस इज द हाउ यू विल लुक आफ्टर एंड टू एंड. तो वो सॉफ्टवेयर भी आ गए, दैट इज कॉल्ड द डिजिटल स्माइल डिजाइनिंग. तो वो सब भी नहीं. जब इतनी सारी चीजें आ गई हैं तो आप खुद सोचिए कि कितना स्कोप है. Definitely. So dentistry is also a field that has many different branches. So thank you everyone. Thank you, Dr. Deepa. Yeah. Thank you for being with us. Also, I will be coming up with more people from different places, from different backgrounds and careers. So please stay tuned. Hey, Sarah, whatever. Please, Sarah, I